Yes. See. So good morning students and welcome to the class and I hope you all are good. कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम अच्छे से doing your studies nicely. So you all know that in yesterday's class I introduced a topic to you that is known as prepositions. It has a very strong position when we come talk of grammar. ठीक है? जब हम grammar की बात करते हैं तो preposition it itself has a word position in it. Position means to stand at some place. So it is a very strong positioned word that is known as prepositions. So talking of prepositions are what? It is made of two words that is pre plus positions. ठीक है? Pre plus positions. And where it is positioned? कहाँ position किया जाता है? Before noun. Noun से पहले. Before noun. कहाँ दोगे इसको? नाउन से पहले इसको पोजीशन दोगे. ठीक है? When you are giving it a position before a noun, it is going to show the relation between what? Between one noun with the other noun or a pronoun. Like if I say book is on the table, what is the noun over here? Book is one noun because it's a name of thing. एक चीज का नाम है ना, वो क्या हो गया? Noun. And when you talk of table, another is what? Table. Table itself वो भी एक चीज हो गई, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? Noun. तो बुक टेबल पर है. अगर मैंने यहां से ऑन को हटा दिया, इफ मैंने ऑन को हटा दिया तो क्या आएगा? बुक इज टेबल. सो बुक इज टेबल समझ में आ रहा है आपको? ओके. सो मैंने अगर वहां से ऑन को रिमूव कर दिया एंड इफ आई से बुक इज टेबल, तो क्या बुक इज टेबल समझ में आ रहा है आपको? बुक इज टेबल, बुक टेबल कैसे हो सकती है, या टेबल बुक कैसे हो सकता है? नहीं. सो इफ आई से बुक इज टेबल इट्स रॉन्ग. अगर मैंने बोल दिया बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, बुक इज ऑन द टेबल, ऑन आते ही मुझे बुक और टेबल का रिलेशन समझ में आ गया कि टेबल है और टेबल के ऊपर एक बुक है. तो ऑन ने क्या किया? ऑन ने रिलेशन शो किया किसका? दो नाउन्स का. और वो दो नाउन कौन से हैं? बुक एंड टेबल. ओके. सो बुक इज ऑन द टेबल. इफ आई से बुक इज इन द बैग, बुक इज द बैग, कैन बुक बी अ बैग? एक बुक बैग हो सकती है? नहीं. तो बुक कहाँ है? बैग में है. तो ये इन जो आया ना, इनने रिलेशन शो कर दिया किसका? बुक का और बैग का. तो दिस वे वी से दैट प्रीपोजिशंस आर वर्ड जो कहाँ आते हैं? नाउन से पहले आते हैं. एंड इट शोज रिलेशन, it shows the relation of one noun or pronoun with other noun or pronoun. ठीक है? Which shows the relation of one noun or pronoun with other noun or pronoun. वो क्या होते हैं हमारे? Preposition, that is known as prepositions. क्लियर है? किसी तरह का कोई डाउट? आई होप सो नॉट. नहीं होना चाहिए. ठीक है ना? नाउ सी, अब बहुत सारे टाइप की prepositions we have. Lots of prepositions we have. We have some preposition that deals with time. We have some prepositions that deals with, we can say, directions. We have some prepositions that deals with the movement, and we have some prepositions that deals with the place. तो बहुत सारी prepositions है. Like random example बोलती हूँ मैं 6-7 prepositions के. In है, into है, on, upon, between, among. ठीक है? Other than that, in front of, beside, besides, behind. We have so many prepositions we have, and all the prepositions, some are showing time, some are showing the place, some are showing the positions we can say, or the directions, and many more things. So this way आपने ये देख सकते हैं यहाँ पे खूब सारे आपके पास में prepositions हैं. And now when we are talking of specific few prepositions, तो देखो हम कैसे लेंगे. Now one by one we are going to take few prepositions. तो पहला prepositions हमने जो लिया वो क्या है? In. ठीक है? In. सेकेंड इसी के साथ जो हम लेंगे, इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड, विल टेक इनटू. ठीक है? इन एंड इनटू. ओके. इन एंड इनटू. नाउ इन क्या होता है? इन इज, इफ आई से कैट is
इन द किचन, कैट इज इन द किचन। यहाँ पे क्या है, कैट कहाँ है, किचन में, बिल्ली कहाँ है, किचन में, बिल्ली रसोई में है। नाउ ये जो इन है ना यहाँ पे, ये वाला इन, ये क्या है, इट इज अ प्रेपोजिशन, ठीक है। बट ये कौन सा प्रेपोजिशन है, ये वो प्रेपोजिशन है जो ये शो कर रहा है कि हमारा नाउन क्या है, रेस्टिंग पोजिशन पे, रेस्टिंग पोजिशन, ठीक है, इट इज ऑन अ रेस्टिंग पोजिशन। क्लियर है। नाउ इफ वी टॉक ऑफ इनटू, उसके बाद में मैं दोनों एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी। कैट इज गोइंग इनटू द किचन, ठीक है, कैट इज गोइंग इनटू द किचन। अब ये जो यहाँ पे इनटू है हमारे पास में, ये क्या है, इट्स अ प्रेपोजिशन अगेन, बट वो कौन सी, किसमें है ये, इट इज इन मूवमेंट, ठीक है, इट इज इन मूवमेंट पोजिशन। कौन सी पोजिशन है ये, मूवमेंट पोजिशन है इसकी, ठीक है, ये मूवमेंट पोजिशन पे है। तो सी, मैंने बोला बिल्ली किचन में है, और एक मैंने बोला बिल्ली किचन में जा रही है, कुछ फर्क लगा दोनों में। एक में तो बिल्ली ऑलरेडी किचन के अंदर है, किचन में है, मतलब किचन के अंदर है, रेस्टिंग पोजीशन पे, कि वो जा नहीं रही है, वो तो ऑलरेडी अंदर बैठी है। और दूसरे में मैंने बोला बिल्ली किचन में जा रही है। अब ये में और में तो दोनों सेम है ना, मैंने बोला बिल्ली किचन में है और बिल्ली किचन में जा रही है। अब हिंदी में तो दोनों में क्या आ गया, दोनों में हमने मे वर्ड यूज कर लिया। अब हिंदी में हम बात करें तो हमारे पास मे आ गया। बट व्हेन वी आर टॉकिंग इट एज अ प्रेपोजिशन इन इंग्लिश, तो जब कोई चीज रेस्टिंग पोजिशन में है, बिल्ली ऑलरेडी किचन में है, द कैट इज इन द किचन, दैट इज इन इज अ प्रेपोजिशन, एंड व्हेन द थिंग इज एट रेस्टिंग पोजिशन, मतलब ऑलरेडी अंदर है। नाउ इनटू इज कैट इज गोइंग इनटू द किचन, बिल्ली किचन में जा रही है, अभी गई नहीं है बट उसमें जा रही है। तो वहां पे क्या हो गया, द इनटू इज व्हाट, प्रेपोजिशन, बट इट्स इन मूवमेंट पोजिशन, की वो भी जा रही है, इन मूवमेंट, इट्स एंटरिंग। और एक में था दैट ऑलरेडी इन साइड, एंड एक में वन इज एंटरिंग, तो वो इन और इनटू का डिफरेंस यहाँ पे आता है, ठीक है, क्लियर, समझे इतनी चीज। यस, अगर समझे हो तो हैंड रेस करेंगे सब फटाफट। यस, देखो now the third one that we are going to take is on, ठीक है, एंड थर्ड के साथ ही फोर्थ हम कौन सा लेंगे, अपॉन। जैसे इन और इनटू समझा था ना, वैसे ऑन और अपॉन भी साथ में ही ले लेंगे। हमने क्या लिया, अपॉन, ठीक है। अब ऑन कहाँ पे आ रहा है, देखो ऑन आता है हमारा जब हम बात करते हैं बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। अब ये क्या है, प्रेपोजिशन। अब देखो सेकंड, इसको भी एग्जांपल देख लो, फिर उस पहले वाले की तरह समझेंगे, ठीक है। बुक कीप द बुक अपॉन द टेबल, ठीक है। बुक इज ऑन द टेबल एंड कीप द बुक अपॉन द टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन एंड अपॉन। अब देखो सेम वही चीज, बुक इज ऑन द टेबल, दैट इज बुक टेबल पे रेस्टिंग पोजीशन में पड़ी है। हिंदी में जब हम बोलेंगे इसको, तो अब जैसे वहां पे हमने मे समझा था ना, वहां इसको समझो बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है। कीप द बुक अपॉन द टेबल, बुक को टेबल पर रख दो। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हमने यहाँ पे इसको ऐसे यूज कर दिया, ठीक है, समझ में आ गई। नाउ इसको ऐसे यूज करने का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो ऑन है ये क्या है, इट्स अ प्रेपोजिशन, बट इसका मतलब क्या हो गया, दैट इट इज एट अ रेस्टिंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन में है ये, रेस्टिंग पोजीशन में, ठीक है, इट्स एट अ रेस्टिंग पोजीशन।
नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ अपॉन, ये क्या है? इट्स अगेन अ preposition, but at which position? It's in a movement position. कौन सी पोजीशन है ये? मूवमेंट पोजीशन. व्हेन द थिंग इज प्रेपोजिशन बट एट रेस्टिंग, तो वहां पे हमने ऑन यूज किया. थिंग इज अ प्रेपोजिशन बट इन अ मूवमेंट पोजीशन, वहां पे हमने क्या यूज किया? अपॉन. तो जब मैंने बोला बुक टेबल पर है, बुक इज ऑन द टेबल, so it's lying down, it's at a resting position on. If I say keep the book upon the table, बुक को टेबल पर रख दो, रखी नहीं है, रख दो, वही वाली चीज हो गई. कैट अंदर थी एंड कैट अंदर जा रही थी. बुक टेबल पर ऑलरेडी है और एक बुक को टेबल पर रख दो, अभी रखी नहीं है. इट्स इन अ मूवमेंट. सो व्हेन द थिंग इज इन अ मूवमेंट, हमने क्या यूज किया? अपॉन यूज किया. सो अगेन यहाँ पे ये क्या हुआ? अपॉन. So these are the preposition that is on and upon. ठीक है? How much is it clear to you? Okay, so now we are going to take the fifth one and the sixth one. पेयर में चलेंगे. When the things are in pair, तो थोड़ा और easily और अच्छे से हमें समझ में आती है. Now see, the fifth one that we are going to take is between. ठीक है? And the sixth one that we are going to take is among. Between and among. ठीक है? अब इसको समझना कैसे है? इसको ऐसे समझना है. पहले बिना एग्जाम्पल के ऐसे ही आपको रैंडम एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसको. देखो, सपोज देयर आर 3 चिल्ड्रन सिटिंग. ठीक है? एक राम है, एक श्याम है, एक लक्ष्मण है. राम और श्याम साइड में है, लक्ष्मण दोनों के बीच में बैठा है. अगर मैं बोलूं कि लक्ष्मण राम और श्याम के बीच में बैठा है, ठीक है, और एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, वहीं पे लक्ष्मण भी बैठा है, तो मुझे बोलना है कि लक्ष्मण बच्चों के बीच में बैठा है, बहुत सारे बच्चों के बीच में बैठा है. तो मैंने वर्ड तो दोनों में सेम यूज किया ना, बीच में, राम और श्याम के बीच में या बहुत सारे बच्चों के बीच में. तो वर्ड तो क्या यूज हुआ? बीच में, राइट? वहां तो कोई डिफरेंस नहीं आया. तो वो क्या होता है? इट इज बीच में. ठीक है? बीच में. अब ये क्या था? ये बीच में क्या था? ठीक है? अब इसको जब हमने बोला बीच में, तो बिटवीन. जब हम बिटवीन की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ टू. एंड जब हम अमंग की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है मेनी. बीच में तो है, बट कितनों के बीच में? बिटवीन मीन्स दो के बीच में, और अमंग मीन्स मेनी के बीच में. ठीक है? अब एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझोगे. मैंने कहा राम इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता. ठीक है? सीता एंड गीता. एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे, इसका जो एग्जाम्पल दिया वो मैंने दिया, राम इज सिटिंग among many people. ठीक है? राम इज सिटिंग अमंग मेनी पीपल. व्हेन आई से राम इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, तो ये क्या है? बिटवीन. बिटवीन मीन सीता एंड गीता. तो कितनों के बीच की बात की मैंने? टू. सो बिटवीन इज अ प्रेपोजिशन, इट इज अ प्रेपोजिशन एंड वी आर टॉकिंग ऑफ टू. तो वहां पे मैंने क्या यूज किया? बिटवीन. नाउ हियर अमंग इटसेल्फ इज अ प्रेपोजिशन. अमंग क्या है? प्रेपोजिशन है, बट इट्स टॉकिंग अबाउट मेनी. सो आई से कि जब दो के बीच की बात होती है तो बिटवीन होता है, एंड जब दो से ज्यादा के बीच की बात होती है तो अमंग होता है. तो मैंने बोला राम इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, तो सीता और गीता तो दो है ना, तो दो के बीच की बात की मैंने क्या कहा? बिटवीन सीता एंड गीता. एंड इफ आई एम से राम इज सिटिंग अमंग मेनी पीपल, बहुत से लोगों के बीच में बैठे हैं वो, तो मेनी पीपल दैट इज अमंग मेनी पीपल, बहुत से लोगों के बीच में. So these are the differences that is between and of among. तो ये दोनों का फर्क होता है. ओके? क्लियर? क्लियर है ना सबको?
यस, सो अब जो नेक्स्ट हमारी आएगी 7th and 8th, वो है beside and besides. So now these are finally the two last prepositions that we are going to take today. One is beside and another is besides. ठीक है, 7th one is beside, beside, and the 8th one is besides. फर्क कुछ नहीं है, एक एस का फर्क है, यहाँ बिसाइड और यहाँ पे बिसाइड्स है. ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, एंड बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू. ठीक है, बाय द साइड ऑफ, इन एडिशन टू. नाउ बाय द साइड ऑफ कहने का मतलब, अगर मैंने बोला सीता मेरे साइड में बैठी है, तो सीता इज सिटिंग बिसाइड मी. बाय द साइड ऑफ मीन्स बाय द साइड ऑफ समवन, तो मेरे साइड में, बाय द साइड ऑफ. ठीक है, मैं यहाँ हूँ मेरे पास में, तो मैंने वहां पे क्या यूज किया, बिसाइड. सीता इज सिटिंग बिसाइड मी, मेरे पास में. तो हियर वी कैन से बाय द साइड ऑफ. ये इसका क्या होता है, मीनिंग होता है. सो इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम, इट इज रिटन एज, जैसे कि सीता इज सिटिंग बिसाइड गीता. ठीक है, अब बिसाइड्स क्या होता है, दैट इज इन एडिशन टू. होता है ना, समटाइम्स वी गो फॉर शॉपिंग एंड हम शॉपिंग पे जाते हैं, शॉप वाले को कहते हैं भैया इसके अलावा और कुछ है तो दिखाओ, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, समथिंग बिसाइड्स दिस, इज देयर समथिंग बिसाइड्स दिस एंड प्लीज शो मी. इसके अलावा कुछ है, इन एडिशन टू दिस, इफ यू हैव समथिंग एल्स देन प्लीज जस्ट शो इट टू मी. सो बिसाइड्स इज, तो किसी चीज के अलावा, तो हम इसको जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, बिसाइड्स हेल्पिंग me with money, he also provided me with shelter. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि पैसे देने के अलावा, पैसों से तो उसने मेरी मदद की, उसके अलावा उसने मुझे रहने के लिए घर भी दिया. ऑल्सो प्रोवाइडेड मी विद द शेल्टर. सो बिसाइड्स हेल्पिंग मी विद द मनी, मनी की हेल्प के अलावा शेल्टर भी दिया. तो इन एडिशन टू मनी व्हाट एल्स ही प्रोवाइडेड, ही प्रोवाइडेड शेल्टर. सो बिसाइड्स हेल्पिंग मी विद मनी ही ऑल्सो प्रोवाइडेड मी विद शेल्टर. तो ये एक तरह से इसका पूरा एग्जाम्पल हो गया, बिसाइड एंड बिसाइड. सो बाय द साइड ऑफ and in addition to, Sita is sitting beside Geeta and besides helping me with money, he also provided me with shelter. Okay, so beside is by the side of and besides is in addition to. एक तो पास में और एक इसके अलावा कुछ एडिशन में कोई चीज होना, that is besides. Clear? चलो, now you are well clear with these two more prepositions. तो once again at last just raise your hands to show that आज का टॉपिक जितना हमने किया था, 8 prepositions we did are very well understood by you, as I have tried my best to explain you it in a very simple way and very clearly. Okay, chalo, good, very nice. Okay, so this is all for today we can say. So now we'll continue with the class tomorrow and we'll finish the topic, that is prepositions. Till then what you have to do, go through the prepositions, 8 prepositions that we did today. इसको अच्छे से देखोगे, इसको अच्छे से समझोगे, and if there are any doubts tomorrow before class starting our class, we'll just give a 5-minute session for your, just we can say the review or the recap of today's class. ठीक है, उस वक्त तक आपके कोई doubts होंगे तो we'll clear it up. Okay, चलो bye and take care of yourself and just do keep studying. Okay, bye.